today we'll discuss the topic that is the hydrides of 17th group elements, and these are also said to be the hydrogen halides. So today we'll study regarding their definition, preparation, and we have to study these 10 basic properties related to the hydrides of 17th group, that is bond length, thermal stability, reducing power, acidic strength, physical state, boiling point, melting point, dipole moment, percentage ionic character, bond strength, and the last one is the bond dissociation enthalpy. Now I'll start with the first. What is the definition of hydrides of 17th group element? The definition is very clear that these are the binary compounds of hydrogen with halogens. हाइड्रोजन और हलोजन के बाइनरी कंपाउंड्स. क्लियर टू ऑल ऑफ यू? फॉर एग्जाम्पल अगर हम लेके चलें, देन फर्स्ट इज HF, देन HCl, देन HBr, then HI. HF is said to be hydrogen fluoride, whereas HCl is hydrogen chloride, HBr is hydrogen bromide, and HI is said to be hydrogen iodide. Clear? So this is, we have discussed their definition example. Now we will study how can we prepare them. The next one is method of preparation. Method of preparation. So as far as method of preparation is concerned, these are simply prepared by the reaction of hydrogen with halogen. For example, if I'll take H2 plus Cl2, then I'll get HCl, twice HCl. If I'll take H2 plus Br2, then I'll take twice HBr, and similarly H2 plus I2, I'll take twice HI. तो इस तरह से हम इनको प्रिपेयर कर सकते हैं. देन H2 plus F2 twice HF. So this is the method of preparation, that is by simply the reaction of hydrogen and halogen. So this is regarding their preparation. Now we'll discuss the main topic of today's lecture, that is their properties. Now, properties of hydrides of 17th ग्रुप एलिमेंट्स. सो पहले यहाँ नोट करते हैं कि जो हाइड्राइड्स हैं वो आपके HF, देन HCl, देन HBr, देन HI. तो पहले थोड़ा सा मैं बेसिक फर्स्ट पॉइंट से शुरू करते हैं. फर्स्ट जो है वो बेटा हमारा बॉन्ड लेंथ है. सो ऑल ऑफ यू नो जो बॉन्ड लेंथ है, इट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू साइज ऑफ एटम्स. जो एटम है, कंबाइनिंग एटम जिनसे आपका बॉन्ड बना है, उनके साइज के डायरेक्टली प्रोपोर्शन होता है. तो जैसे आप HF से HCl पे जाओगे, HBr पे HI पे जाओगे, तो ड्यू टू इंक्रीज इन द साइज फ्रॉम फ्लोरीन टू क्लोरीन, क्लोरीन टू ब्रोमीन, ब्रोमीन टू आयोडीन, तो जो आपकी बॉन्ड लेंथ है वो इंक्रीज करेगी. और ये मैंने क्लियरली यहाँ शो भी कर रखा है. दिस इज, सो द बॉन्ड लेंथ इंक्रीजेज इन द ऑर्डर HF, HCl, HBr and HI. Reason is very clear, due to increase in the size of halogen, fluorine, chlorine, bromine and iodine. Now come to the second point, that is the thermal stability. Thermal stability also said to be the, you can say, normal stability. So बेटा जो थर्मल स्टेबिलिटी है, इट इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू बॉन्ड लेंथ. मैं क्लियर करता हूँ. देखिए, जितना आपका बॉन्ड लेंथ ज़्यादा होगी, सिंपल लॉजिकली बात करते हैं. सपोज दीज आर द एटम्स AB, दिस इज द एटम A एंड C. तो AB और AC, ये मैंने आपके सामने दो बॉन्ड शो कर रखे हैं. तो बॉन्ड लेंथ जो है वो AC की ज़्यादा है. आई विल से बॉन्ड लेंथ ऑफ AC इज मोर देन AB. तो बॉन्ड लेंथ ज़्यादा होगी तो ये जो आपके दो एटम्स हैं, इनके बीच का डिस्टेंस भी ज़्यादा होगा. डिस्टेंस ज़्यादा होगा तो जो आपका शेड पेयर है उस पर इन एटम्स के न्यूक्लियस की फोर्स ऑफ अट्रैक्शन कम होगी.
तो यानी जो आपका बॉन्ड होगा वो ऑटोमेटिकली क्या होगा, वीक होगा। तो इसमें ध्यान रखना है बॉन्ड लेंथ ऑफ AC इज मोर देन AB, तो वी कैन से दैट द बॉन्ड ऑफ AC इज वीकर देन AB। ये बॉन्ड आपका वीक हो जाएगा और ये बॉन्ड आपका स्ट्रांग हो जाएगा। क्लियर? तो सिंपल लॉजिक है कि वीक और स्ट्रांग बॉन्ड में इट्स द रूल ऑफ द नेचर कि जो चीज ज्यादा स्ट्रांग होती है दैट विल बी मोर स्टेबल। सो आई से दैट AB इज मोर स्टेबल। तो लॉजिकली अगर हम बात करें, इफ आई राइट द एक्सप्लेनेशन, फिर हम इसको देखेंगे डिटेल में। व्हाट आई राइट, जस्ट सी आउट, इफ द बॉन्ड लेंथ इंक्रीजेस द बॉन्ड बिकम्स वीक, बॉन्ड आपका वीक हो जाएगा। क्लियर? एंड इट्स स्ट्रेंथ डिक्रीजेस एंड हेंस थर्मल स्टेबिलिटी डिक्रीजेस। तो थर्मल स्टेबिलिटी का जो ऑर्डर आएगा दैट इज HF, HCl, HBr और HI. It is just reverse of the order of, you can say, bond length. So this we have discussed the two properties. Number one, bond length we have discussed. Second, we have discussed that is the thermal stability or stability. Now the third property is reducing character. Number 3, reducing character. तो रिड्यूसिंग करेक्टर का मीनिंग क्या होता है कि जो आपके हाइड्रोजन हैलाइड है, जस्ट लाइक आई विल गिव यू HCl, दिस HCl गिव्स अस H2 plus Cl2. Similarly, if I'll take HBr, then this HBr gives H2 plus Br2. So the tendency of the hydrogen halides, or you can say hydrides of halogens, to give the hydrogen is the reducing character. So reducing character means tendency to give hydrogen. Clear? अब फिर से वही बात, डाउन द ग्रुप बॉन्ड लेंथ इंक्रीज करेगी, बॉन्ड लेंथ इंक्रीजेस ड्यू टू विच बॉन्ड बिकम्स वीक, बॉन्ड आपका वीक हो जाएगा। देयरफॉर टेंडेंसी टू गिव हाइड्रोजन इंक्रीज। बॉन्ड अगर वीक होगा तो जल्दी ब्रेक होकर आपको क्या मिलेगा, हाइड्रोजन मिलेगा। दैट इज द टेंडेंसी टू गिव द हाइड्रोजन इंक्रीजेस एंड हेंस द रिड्यूसिंग करेक्टर increases down the group. So reducing character का जो ऑर्डर आएगा that is HF, HCl, HBr and HI. You can say it is directly proportional to bond length. So this is the property number 3 we have discussed. Now the 4th property, that is acidic strength. Number 4, acidic strength. So acidic strength is, if I'll take HCl, it gives us H positive plus Cl negative. If I'll take HBr, it gives us H positive plus Br negative in their aqueous solutions. Solution की बात हो रही है, ठीक है। Similarly, if I take HI, it gives us H positive plus I negative. और अगर हम HF को लेंगे, सो आई विल गेट H पॉजिटिव प्लस F नेगेटिव। तो ये जो आपकी टेंडेंसी है H पॉजिटिव देने की, दिस इज सेड टू बी द एसिडिक स्ट्रेंथ। एसिडिक स्ट्रेंथ इज द टेंडेंसी टू गिव H पॉजिटिव आयन। क्लियर टू ऑल ऑफ यू? और H पॉजिटिव आयन जो आपको जल्दी देगा उसकी एसिडिक स्ट्रेंथ क्या होगी, ज्यादा होगी। सो डाउन द ग्रुप बॉन्ड लेंथ इंक्रीजेस, बॉन्ड लेंथ आपकी इंक्रीज करेगी, ठीक है। ड्यू टू विच व्हाट हैपन्स, बॉन्ड बिकम्स वीक एंड इट डिसोसिएट्स easily to give H positive ion, or we can say tendency to give H positive ion increases and hence acidic strength also
इंक्रीज, जो एसिडिक स्ट्रेंथ है वो भी क्या करेगी बेटा, इंक्रीज करेगी। तो जो ऑर्डर आएगा दैट इज HF, HCl, HBr और HI। तो इसको भी हम डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू बॉन्ड लेंथ बोल सकते हैं। अब एक चीज़ आपको ध्यान रखना है, नॉर्मली pKa इट इज़ इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू एसिडिक स्ट्रेंथ। अगर आपका pK का क्वेश्चन आता है तो सिंपल ध्यान रखना है कि वॉट एवर यू हैव डन द एसिडिक स्ट्रेंथ, इसको रिवर्स कर देना है। जैसे ये मैंने जो ऑर्डर दिया आपको, ये ऑर्डर मैंने दिया एसिडिक स्ट्रेंथ का। इफ आई से कि pKa का ऑर्डर दो, देन द ऑर्डर इज रिवर्स्ड, इट विल बी HI, HBr, HCl and HF, because this pKa is inversely proportional to acidic strength. So this we have done the fourth property, that is acidic strength. Now at number 5 we will discuss their physical states. Physical state number 5. Physical states. So just see out the students, we know that HF, HCl, HBr and HI. This HF has the ability to form the hydrogen bond, while these other, they will have the van der Waals forces. तो यहाँ पर HF में we can say there are hydrogen bond forces. So due to the strong hydrogen bond forces, जो आपका HF है वो basically एक liquid है, while all other are basically the gases. तो अगर आपसे क्वेश्चन पूछते हैं, they will ask you why the HCl, HBr and HI are gases, then simply you will say because they will have the weak van der Waals forces due to which they exist in the gaseous state. Regarding HF, it has the ability to form the hydrogen bond and that is considered to be a strong force, therefore it will exist in the liquid state. Clear to all of you? So this is regarding the physical state. Next property number 6, boiling point and melting point. So regarding boiling point and melting point, you know one thing very well known, that these are directly proportional to intermolecular forces. ठीक है, इसके डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। तो लेट अस स्टडी नाउ। ये HF, HCl, HBr और HI. HF में we know that there are hydrogen bond forces and these are the strong forces, whereas in these they will have weak van der Waals forces. तो अगर मैं इनको इससे कंपेयर करूं तो जो HF का मेल्टिंग और बॉइलिंग पॉइंट है वो ज़्यादा होगा एज कंपेयर टू अदर। रीजन इज क्लियर। अब इन तीनों में कैसे कंपेयर करें? ऑल ऑफ यू नो जो आपकी van der Waals फोर्सेज हैं, दिस van der Waals फोर्सेज आर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू साइज। तो HCl से बड़ा साइज HBr का है, उससे बड़ा साइज HI। तो जो साइज है वो किस ऑर्डर में इंक्रीज करेगा? HCl, देन HBr, देन HI। देयरफॉर van der Waals फोर्सेस का जो ऑर्डर होगा HCl, HBr एंड HI, और क्योंकि जितनी ज़्यादा फोर्स होगी हायर विल बी द बॉइलिंग पॉइंट, मेल्टिंग पॉइंट, सो ये आपका ऑर्डर होगा। तो HF का सबसे ज़्यादा क्यों? इट हैज स्ट्रॉन्ग हाइड्रोजन बॉन्ड फोर्सेस। यहाँ इंक्रीज क्यों हो रहा है? बिकॉज फ्रॉम HCl टू HBr टू HI जो आपका van der Waals फोर्स का मैग्नीट्यूड है वो इंक्रीज होगा ड्यू टू इंक्रीज इन द साइज। साइज क्यों इंक्रीज हो रहा है? क्योंकि हाइड्रोजन एटम का साइज इंक्रीज हो रहा है। क्लोरीन से बड़ा ब्रोमीन, ब्रोमीन से बड़ा आयोडीन। क्लियर? सो दिस वी हैड डिस्कस्ड बॉइलिंग पॉइंट, मेल्टिंग पॉइंट। Now we'll discuss the seventh property, that is the dipole moment. The seventh one is dipole moment. So जो dipole moment property है बेटा, it is directly proportional to the electronegativity of combining atoms. जितनी ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिविटी होगी उतना डाइपोल मोमेंट ज़्यादा होगा। सो अगर बात करें हम HF, HCl, HBr और HI, तो जो आपको इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का ऑर्डर है, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिक्रीजेस फ्रॉम फ्लोरीन टू क्लोरीन टू ब्रोमीन टू आयोडीन। देयरफॉर आई कैन से जो डाइपोल मोमेंट है इट आल्सो डिक्रीजेस इन द ऑर्डर HF, HCl, HBr and HI. This is now. So this is the seventh property. Now the number 8 property is
percentage ionic character. This percentage ionic character, this is also directly proportional to the electronegativity of combining atom. Therefore we get the same order जो हमें यहाँ पे मिला था, that is HF, HCl, HBr and HI, same order as we got in the dipole moment. Clear? So this is the 8th property, percentage ionic character. After that we'll study, that is the bond strength, 9th one. Just see out. The 9th property we'll study is the bond strength. Now beta we know that जो आपकी bond length है, it increases from HF to HCl to HBr to HI. तो मैंने आपको बताया था जैसे जैसे बॉन्ड लेंथ बढ़ेगी तो बॉन्डेड एटम के बीच का जो डिस्टेंस है वो ज़्यादा होगा, डिस्टेंस ज़्यादा होगा तो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन कम होगी, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन कम होगी तो जो आपका बॉन्ड होगा उसकी स्ट्रेंथ क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी, बिकॉज वो बेसिकली वीक बॉन्ड होगा. सो एज द बॉन्ड लेंथ इंक्रीज, पहले इससे एक्सप्लेनेशन देखिए. बॉन्ड लेंथ इंक्रीजेस, द डिस्टेंस बिटवीन द bonded atoms increases, due to which the bond becomes weak and hence bond strength decreases. जो bond strength है वो आपकी डिक्रीज करेगी. तो ऑर्डर क्या आएगा, HF, HCl, HBr एंड HI. तो मैं जो बॉन्ड स्ट्रेंथ है इसको मैं क्या बोल सकता हूँ, इट इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू बॉन्ड लेंथ. हम इसको इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू बॉन्ड लेंथ भी बोल सकते हैं. दैट थिंग यू हैव टू रिमेंबर. नाउ द नेक्स्ट प्रॉपर्टी दैट वी हैव टू स्टडी इज बॉन्ड डिसोसिएशन एनर्जी नंबर 10. बॉन्ड डिसोसिएशन एनर्जी और बॉन्ड डिसोसिएशन एंथैल्पी. सो ऑल ऑफ यू नो व्हाट इज द मीनिंग ऑफ बॉन्ड डिसोसिएशन एनर्जी. अगर किसी एक बॉन्ड को ब्रेक करना है तो जो एनर्जी आप सप्लाई करोगे सो दैट वो बॉन्ड ब्रेक होकर जो एटम्स हो गैसीय स्टेट में कन्वर्ट हो जाए, दैट इज अ बॉन्ड डिसोसिएशन एंथैल्पी. सो इट इज सिंपली द एनर्जी रिक्वायर्ड टू ब्रेक 1 mole of the bonds into the gaseous atoms. सपोज ये आपका बॉन्ड है HCl का, इसको ब्रेक करने के लिए मुझे कुछ एनर्जी सप्लाई करनी पड़ेगी, दैट इज आई विल से बॉन्ड डिसोसिएशन एंथैल्पी. और ये एनर्जी HCl को कन्वर्ट कर देगी H2 गैस प्लस Cl2 गैस में. यानी बेसिकली अगर बात की जाए हमें पहले इनको ब्रेक करना है. अच्छा, H2 और Cl2 डायरेक्टली नहीं बनेंगे, पहले जब ये बॉन्ड ब्रेक होगा तो H भी गैसियस फॉर्म में बनेगा, Cl भी गैसियस फॉर्म में बनेगा. आफ्टर दैट बीइंग दीज आर डाई एटॉमिक तो ये उसमें कन्वर्ट होंगे. तो टेक्निकली क्या मतलब है बॉन्ड डिसोसिएशन एंथैल्पी का, कि अगर आपको किसी बॉन्ड को ब्रेक करना है, कोवेलेंट बॉन्ड को, तो जो एनर्जी आप सप्लाई करोगे दैट इज बॉन्ड डिसोसिएशन एंथैल्पी. अब ये किस पे डिपेंड करती है, अगर कोई बॉन्ड स्ट्रांग होगा तो उसको ब्रेक करने के लिए वी हैव टू सप्लाई लार्ज अमाउंट ऑफ एनर्जी. सो दिस बॉन्ड डिसोसिएशन एंथैल्पी आई कैन से इट इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू बॉन्ड लेंथ. मैं एक्सप्लेन करता हूं. इफ बॉन्ड लेंथ इंक्रीजेस वी नो दैट बॉन्ड बिकम्स वीक. बॉन्ड वीक होगा एंड द एनर्जी रिक्वायर्ड to break the bond also decreases. वो क्या करेगी, डिक्रीज करेगी. तो फिर से देखिए, जैसे बॉन्ड लेंथ बढ़ी बॉन्ड आपका वीक होगा, वीक होने पर क्या होगा, उसको ब्रेक करने के लिए जो एनर्जी लगेगी वो कम लगेगी. देयरफॉर इट इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू बॉन्ड लेंथ. अब जो आपका बॉन्ड लेंथ का ऑर्डर है वो क्या है, HF, HCl, HBr और HI. तो बॉन्ड डिसोसिएशन एंथैल्पी BDE ऑर्डर विल बी नाउ HF, अब ये डिक्रीजिंग ऑर्डर है, HCl,
HBr और HI। तो सबसे ज़्यादा बॉन्ड डिसोसिएशन एंथैल्पी आपकी HF की मैक्सिमम और सबसे कम आपकी HI की मिनिमम। सो स्टूडेंट, दिस वी हैव कंप्लीटेड द टॉपिक दैट इज द हाइड्राइड्स of 17th group element, also said to be the hydrogen halides, and we have completed these definition, preparation and the properties. Clear to all of you? So this is all about the topic hydrogen halides or hydrides of 17th group elements. That's all.